Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are back with our Wednesday sessions. I am Shashidhar, your host, and the topic for today is the significance or glory of satsang. So that is what the topic is for today. Every week we have some new topic and we discuss the spiritual aspect of it, and we do a lot of discussions and brainstorming so that we can be clear about our purpose of life, our spiritual journey, and which yoga mark will be the best for us. So that is what our discussions are. So this is basically a spirituality and healing group. And this session, as I said, this is on the importance or the significance of satsang. So let us first start the discussion with what is satsang. When you hear this word, what comes to your mind? So anybody who wants to share, and then we will see into the depths of it. What are the benefits and why satsang is so very crucial? Even in our scriptures, it is mentioned that. Yes, so we will look into that. So what is your idea of what is satsang and its importance in the spiritual journey? Yes, कौन बोलना चाहेंगे? सत्संग का महत्व. For those who are keen to listen that to in Hindi. Yes, Adiji, you want to share something? My definition is Satya ka Sang is satsang. Perfect. Satya ka Sang. So company of truth. That is satsang. Very good. Anybody else who has a different definition? I can attempt. Yes, Vijay, you go ahead. So completely in sync with Adiji. In fact, satsang, I would say, is a continual process to bring yourself with the correct minded people so that you can be in Satya, because all the time the surroundings and the news and everything, Sansar is trying to take you away from the Satya. Correct. And when you are in satsang, the reinforcement always keeps happening as to where the direction should be, in the positive direction and in the Satya direction. Perfect. So you're saying company of like-minded people who are looking for truth. So company of seekers, that can also be called satsang. Very good. So that is a good understanding. Right. Anybody else who has any other understanding? We also say God is truth. So satya ka sang matlab connection with the or association with the divine. That is also satsang. Yes. And हम पहले ये बोलते थे कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े तो गुरु गोविंद से मिलाते हैं. हाँ, तो गुरु, so your association with guru is also satya, because that time, or you can say some time back, we always used to connect कि सत्य कौन सिखाता है? सतगुरु, है ना? तो जो गुरु है, who is established in truth, and he can connect you to the Parabrahma. So guru is the medium or the channel to reach the divine. तो गुरु की महिमा हम बोलते हैं, Guru Seva, Guru Kripa जो बोलते हैं. So that also is there. So association with the Guru is also satsang, right? So company of truth, company of God, company of Guru, all this is satsang, and company of the people, like-minded people who are seekers and who are moving on that journey. That is also satsang, correct? Anybody else who has any other definition? What is satsang? अगर कोई बोलता है गुरु आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पहले तो चलो सात्विक लोग होते थे तो मिल जाते थे गुरु, आजकल फ्रॉड गुरु बहुत हैं. तो गुरु को ढूंढना मुश्किल है. So you can have even Bhagavad Gita as your guru. Anything that dispels the darkness in you and gives you the wisdom, divine wisdom, is your guru. तो गुरु का मतलब यही है, जो डार्कनेस को दूर करता है, अज्ञान को दूर करे और ज्ञान की वर्षा करे. तो आप स्क्रिप्चर्स को भी अपना गुरु मान सकते हैं. भगवद गीता इज ए परफेक्ट गुरु. Yes, and like Gautam Buddha always said, अपना दीपक स्वयं बनो. That means you surrender to the awakened self in you. So awaken the self within, and then let that awakened self guide you. So वो भी satsang है, right? So there can be many ways how you can connect with the divine within, the divine outside. So all that is part of satsang. But typically satsang, what does it imply? You go to a scheduled place where some people gather and they do bhajan, kirtan, katha, Bhagavad Katha, Ram Katha. All this is also the traditional way or the customary way of celebrating satsang. So company of truth, company of God, that is all satsang, right? So we have some fair idea about satsang.
और किसी का कोई अलग डेफिनेशन है तो यू कैन कम अप विद इट, बट आइडियली वी आर लुकिंग फॉर द कंपनी ऑफ द एसोसिएशन विद द डिवाइन, दैट इज सत्संग। तो हम मिलके भजन गाते हैं, मिलके भजन में भाव विभोर भी हो जाते हैं, डांस भी करते हैं, हाँ, तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ satsang. You are connecting with the divine. Yes. So that is satsang. Now, when we talk of the importance of satsang, we should understand spiritual journey में हम basically तीन तरह से spiritual journey को हम आगे बढ़ाते हैं. The three pillars of spiritual journey. So we call that as sadhana, we call that satsang, and we call that seva. So sadhana, satsang और सेवा ये तीन pillars माने जाते हैं spiritual journey के, right? तो सत्संग की महिमा अगर हम बोल रहे हैं तो इट इज नॉट फार अवे फ्रॉम साधना, क्योंकि जब आप साधना करेंगे, अपनी साधना इज दैट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आप जो कर रहे हो, लाइक इफ आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम डूइंग माय योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम अलोन, राइट, सो दैट इज माय साधना. साधना नॉर्मली इज डन अलोन, और जब वो कंपनी में करते हैं देन इट बिकम्स मोर लाइक ए सत्संग, करेक्ट. तो साधना और सत्संग में फर्क क्या है, अगर हम पहले थोड़ा सा ये डिस्टिंग्विश कर लें. How is sadhana different from satsang? One difference I have already said. Sadhana is basically done individually, and satsang is done in a collective, you can say group, where people gather and then they do satsang. So what is the basic difference? Group meditation, individual meditation. अकेले आप बैठ के भगवान का जप कर रहे हो और साथ में मिलके सारे मेडिटेशन और जप कर रहे हैं या भजन गा रहे हैं. आप अकेले भी भजन सुन सकते हो और ग्रुप में भी आप भजन गा के सुन सकते हो. तो सत्संग करना, और सत्संग में ऑब्वियसली श्रोता और वक्ता होते हैं, एक वक्ता होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं, है? तो लाइक दैट. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंशिएशन? एनीथिंग एल्स दैट यू कैन फील? Why is, or let me put it this way, why is satsang considered one level above sadhana? It is considered one level above sadhana, so why? That is my question. Yes, Amit ji. My First Adi, viewpoint okay. is. Okay, sorry. Somebody else no is problem. speaking. You can go ahead. First Okay, Adi, then Amit. Yeah. My understanding and my viewpoint is sadhana is basically a prayas. When you are putting efforts, it is sadhana. And when you are what you are, just in the presence of what you said earlier, is when you are with yourself, when you are with the source, when you are with your guru, when you are with the seekers, doing nothing but just your presence is satsang. Is my version of understanding. You can look at that also as a different perspective. Very good. So that's a good understanding. Let's acknowledge Adi. Good. Yes, Amit, you wanted to share something? Go ahead. I think the difference is that the same difference between energy and synergy. So individually, whatever we do is good in terms of energy, but satsang में क्या होता है? 1 + 1 is not 2. वो synergistically 11 हो जाता है. And we get multiple fold benefits because of the concept of synergy. When let's say 10 people are getting together, either meditating together or talking about ज्ञान or spiritual theory, वो 1 + 1 11 और 3 हो जाता है 111. So this is the intense difference between because of the energy. Very good. और इसको अगर हम 3D वर्ड में और मेटल वर्ड में देखें कि ज्यादा लोगों से बात करते हैं तो ज्यादा सीखने को मिलेगा as compared to let's say being in our own self. उसका अपना अलग महत्व है, फायदा है, और इसका अपना अलग, but profound है. Perfect. Very good, Amit ji. There's a good understanding again. So acknowledgement for Amit and Adi. Now this is very well said actually. See, in sadhana it is like, now I'll give an example and you can all relate with it. मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ और खुद अपनी मेहनत से खा पी रहा हूँ, तो इंडिविजुअल एफर्ट है. तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोटी पकाई और खिचड़ी पकाई और मैंने खाई, बात खत्म. तो अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से जो कमा रहा हूँ मैं, वो ही पुण्य कमा रहा हूँ. अपनी साधना करी, पुण्य कमाया और वो मैंने उसको यूज कर लिया. करेक्ट. सत्संग में क्या हो रहा है? सत्संग में वक्ता कुछ बोल रहा है और उसके ज्ञान से मेरे को ज्ञान मिल रहा है, जस्ट सुनने से, जस्ट बीइंग बाय प्रेजेंट देयर, लाइक आदि सेड. Not doing much efforts, but just being there and listening to the ज्ञान that is being said, I gain wisdom. तो खिचड़ी किसने बनाई? सब लोगों ने मिलके बनाई.
मैंने शायद कंट्रीब्यूट किया भी नहीं, लेकिन उसका फल मेरे को मिल रहा है. तो दैट इज व्हाट अमित जी सेड, सिनर्जी 1 + 1 इज इक्वल टू नॉट 2 बट 11. तो औरों के विजडम से हम हमारे विजडम का जो प्रोसेस है, that spiritual process of gaining that wisdom is faster. So you can gain much more in satsang rather than doing some individual study. भगवत गीता अकेले पढ़ रहे हो और अगर वहां पे आप भगवत कथा चल रही है और भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है और वहां सुन रहे हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. आप अकेले मेडिटेट कर रहे हो और 20 लोगों के साथ मेडिटेट कर रहे हो, दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव एनर्जी इज मच मोर. So that is why satsang is considered to be one level higher than sadhana. Correct? See, basically what we are doing is we are experiencing and expressing divinity. Correct? So first we have to connect with the divine, then you experience divinity. How do you experience divinity? With your sadhana and satsang. You are experiencing. How do you express it? By seva. तो ये तीन pillars जो हैं, sadhana, satsang और seva, this is actually the whole process of spirituality where you are raising your consciousness, experiencing divinity, raising your consciousness and expressing divinity in the form of your karma. तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव में होगा, स्वार्थ भाव से नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से या फिर लोगों के कल्याण, लोक कल्याण के लिए होगा. तो that will be a great service to humanity and mankind. So that kind of seva will come when you are empowered with the divine qualities which you gain from sadhana and satsang. But satsang definitely one level higher than sadhana. Yes, everybody okay with this? Great. Anybody else wants to share? Yes, Sanjeev, go ahead. So Sashi, for everybody's, I don't know anybody else has this question or not, but I'm just talking for anyone's perspective. Why do you say sadhana is higher than, satsang is higher than sadhana? That's important for one to understand. Yes. So you want me to explain that? Yeah, I think that would be important because somebody has that question. That would be really important. Okay, so we are discussing that only. I think possibly we will have a repetition. So we will repeat that, no problem. तो साधना जैसे अभी अमित जी ने कहा था, it is like 1:1. मैंने अपना खाना बनाया और खा लिया, मेहनत करी, पुण्य कमाया और उसको मैंने अपने जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी में आगे डाल दिया. सिनर्जी क्या होती है? 1 + 1 is not 2, but 1 + 1 is equal to 11. So I gain from the wisdom of others. So it is a collective effort which gives me that wisdom. जब मैं सुन रहा हूँ मैं नई चीजें सीखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं वही सीखूंगा जो मेरे को मालूम है. It will be more or less a reinforcement, but there is no new wisdom coming to me. But when I'm listening to maybe Amit ji or when I'm listening to Sanjeev, I will have something more being contributed to me. So that gives me more sharper insights and greater wisdom to move forward in my spiritual journey. Right? So that is one reason why we say कि साधना में it is one effort. तो 1:1 का रेशियो मिलेगा आपको, लेकिन सत्संग में you put in 1, you get 10 or you get in 11. So that is a kind of ratio of benefits that you can move on the spiritual journey. और स्क्रिप्चर्स में भी हमारे कहा गया है कि बिना सत्संग विवेक न होए. सत्संग के बिना विवेक का जागृत नहीं होता है, और सत्संग में आने के लिए भी आपको भगवत कृपा होगी तभी मिलेगी. तो साधना इसलिए जरूरी है. साधना से आपकी उतनी डिवाइन ग्रेस का एक्सेस मिलता है जिसकी वजह से आप सत्संग में जाओगे. सत्संग में सब लोग नहीं जाते हैं. Only when the divine grace is there, only then you will end up in satsang. तभी आपको गुरु मिलेंगे, तभी आपको अच्छा सत्संग मिलेगा, और तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का बूस्टर डोज ले सकते हैं. तो स्क्रिप्चर्स में बोला गया बिना सत्संग विवेक न होए, और विवेक कब मिलेगा? जब गुरु कृपा होगी. So that gives a sufficient explanation for people who have just joined in. So Sanjeev, is that okay, or you want more information or discussion on that? That's perfectly fine. As a comparison, why, that's what the process I heard. But again, from the general perspective, level up or down, एक ऊपर एक नीचे, वो थोड़ा सा क्लैरिटी हो तो और अच्छा है. तो नॉर्मली स्पिरिचुअल जर्नी में हम यही बोलते हैं कि साधना इज द फर्स्ट स्टेप. With that you get the divine grace, and then you will end up in the right company, which is satsang. So your spiritual journey goes higher, much higher. Got it.
Perfect. I know, I can understand. That's perfectly fine. But Thank I you. know you were asking for the group, so you're very clear on that. Yeah. जो विपासना 4-5 बार कर चुके हो उनको सत्संग और साधना, सत्संग और सेवा में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है. Right. Very good. Okay, great. So that is for everybody who shared and who asked. Now we will move forward, but before that, anybody else who wants to share? Meanwhile, welcome Kapil ji. AB, welcome. Okay. Okay. Anybody else who wants to share? Yes, सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट किया हुआ है क्या आपने. नहीं पा रहा हूँ. हाँ जी. सत्संग के बारे में बड़ी बड़ी बातें आपने कही, सारी बात थोड़ी सुन के अच्छी लगती है और हाँ. समझ में आता है, कोई काउंटर नहीं है, लॉजिकली आई हैव टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन जो मेरी आंखें देखती है, जो मैं समझ पाता हूँ, जो आसपास जो सत्संग होते हैं या सत्संग के नाम पे जो हो रहा है समाज में आज, वो मुझे नहीं लगता है कि दैट इज एनीथिंग अबव साधना. वो साधना से काफी नीचे है. जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसको मैं अपन सत्संग देख रहे हैं, आज वहाँ राम कथा हो रही है, आज वहाँ भगवत पाठ हो रहा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है, इतना बड़ा पंडाल बना है, तो वहाँ कितने लोग अपना ज्ञान लेके बाहर आते हैं, आई हैव माय डाउट्स. अदरवाइज जो होता है सब अच्छा होता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता. Yeah. So हाँ, थ्योरी में जो आपने कहा, आपकी बात एकदम बिना कोई नहीं काट सकता, सही बात है. लेकिन सत्संग पता नहीं, if it is at all available anywhere in the Yeah, so as I said, you will get the right satsang only when you have the divine grace. और बिना सत्संग विवेक ना होए. This is part of the famous quote which is in our scriptures. Vivek is what? The discriminatory wisdom of what is truth, what is not the truth. है ना? तो विवेक होने के लिए सत्संग जरूरी है और सत्संग के लिए गुरु कृपा जरूरी है, गुरु कृपा के लिए साधना जरूरी है. That is how the connection is. Right? Now, don't go by the quality of one satsang which you have possibly seen or which is happening outside. I am talking of in general what is satsang, what is sadhana. कहीं पे तो साधना भी बहुत सोचते हैं कि बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं. बहुत सारे लोग साधक हैं जो सोचते हैं उनकी साधना 100% परफेक्ट है, but they have their own views and others have their own views. Correct? 20 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और गुस्सा बढ़ रहा है, तो किस तरीके की साधना हो रही है फिर? वो कहते हैं रोज सुबह उठ के मैं योग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ. What kind of sadhana is that? So we can have a lot of questions on what is quality of sadhana and satsang, but in general, sadhana is the starting point and satsang is one level higher than sadhana. That is how we have learned in the scriptures. Yes, so we can have more sharings, that's fine. But you are free to understand that not everybody will be of that highest quality, which is okay. आजकल पाखंड भी बहुत हो रहा है. हाँ, दिखावा ज्यादा हो रहा है. सत्संग में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे हम बोलते हैं ना, सबसे पहले तो वो सुनना है, उसको समझना है और उसको उतारना है. वरना सत्संग में लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते तो है ही नहीं और वहीं छोड़ के चले जाते हैं. जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं. तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. तो सिर्फ दिखावा हो गया कि 3 घंटे का सत्संग करके आए जी, भगवत कथा पढ़ी, सप्ताह पूरे 7 days का भगवत कथा पढ़ी, हुआ क्या? कुछ नहीं. तो फिर वो पाखंड ही है, वो दिखावा है ना? I understand what you're trying to say, but let us look into our life and see how we can make the best of it. Yes. Okay, great. Let's acknowledge Sushil ji. Valid point, valid consideration, or valid concern. But yes, we have to focus on our sadhana, our satsang. Yes, Amit ji, you had raised your hand in between. Same thing. I think not all the satsangs are the best satsangs, and also not all the sadhanas. जो मैं भी, for example, अगर मैं अकेले में करता हूँ, is it the best of the sadhana that I'm doing? The answer is no. So I think अगर हम एक ideal hypothetical situation लें कि best of the sadhana and best of the satsang, बाकी में pure, to the point, without any corruption and pollution to it, तो हम पाएंगे कि अगर हम apple to apple compare करें, तो सत्संग का जो synergistic effect है, वो not measurable है. Absolute, perfect, right, well said, well said. Okay, let's acknowledge Amit ji, and yes, Vijay ji, you have raised your hand, and after that, Kapil ji, yeah. मैं एक थोड़ा ट्विस्ट देना चाहूंगा सर. ये कौन सा बेटर है, कौन सा वर्स है, ये सब माइंड गेम्स हैं. मेरा ख्याल सेवा, साधना, सत्संग तीनों इम्पोर्टेंट हैं. तीनों की अपनी जगह है. तीनों में जहां आप जाना चाह रहे हो वो डिविनिटी है. किसी सत्संग में अगर आपको लगता है कि आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो आप दूसरे सत्संग में चले जाओ. सिमिलरली प्रैक्टिस जरूरी है, साधना जरूरी है. इनकरेक्ट भी है, फिर भी साधना जरूरी है. Yes.
क्योंकि उसी से आदमी इंप्रूव कर सकता है अपनी साधना। You will तो keep process, moving. that process is more important than the Yes. final that individual day. करेक्ट। बहुत लोग बहुत कुछ ढूंढते हैं, उसके बाद उनको सही जगह मिलती है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सो कई बार therefore गिरना जरूरी है, ये हाँ, संभल के गिर बेटर के नॉट टू संभलना जरूरी है। कंपेयर। हाँ, कंपेयर ना करें। साधना भी इम्पोर्टेंट है, सत्संग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सत्संग में आप अकेले नहीं ग्रो कर सकते। अनलेस आपके पास गुरु है तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन एकलव्य ने जैसे किया था, उसने अपने माइंड में गुरु बनाया एंड ही वर्क फॉर इट एंड ही अटेन्ड इट। Absolutely. तो मतलब जैसा आपने बोला, भगवत गीता को भी आप सत्संग के लिए ले सकते हो। Yes. तो मतलब वो प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, Yes. इंडिविजुअल की प्रोसेस टू गो फ्रॉम ईगो टू डिविनिटी। Because basically human mind has to accept somebody as superior level, है ना? तो बड़ी गुरु को प्रॉब्लम एक आती ऊंचे है। पदवे पे हमने बिठा दिया, तो वो एक गाइडिंग फोर्स मिल गया। नाउ आई कैन consider that guru is telling me this and then I am doing it. So there is some kind of a connection with the higher self. So that you can call guru, you can call your higher self, जो भी आप बोलना चाहो बोलिए, बट आपको गाइडेंस मिलेगी। करते जाइए साधना, गलती होगी, गिरेंगे तो भी उठ के चलिए। अल्टीमेटली यू विल मीट द राइट पाथ, अगर तो आपका अमित जी पैशन ने है। जो एक बहुत हाँ, अमित जी ने जो एक बात बहुत बढ़िया जो बोली थी, 1 और 1 11, या एक होल इज ऑलवेज बिगर देन द इंडिविजुअल्स। यस, मतलब दैट इज द की फॉर सत्संग। एब्सोल्युटली। एक सत्संग अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, दैट्स इफ यू गो टू रॉन्ग वन यू विल फाइंड द राइट वन, क्योंकि आपके अंदर हाँ, वो पैशन है वो ना? सर्च है। करेक्ट करेक्ट। साधक के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक तड़प और एक पुकार। एक तो तड़प होती है एब्सोल्युट। भगवान के लिए, और एक होती है पुकार। उसके दिल से जो आवाज निकलती है कि हे कृष्णा या हे राम, हे जो भी आप जिसको भी बुलाना चाहो अपने इष्ट देव को, उसके लिए कितनी तड़प है और कितनी आपकी पुकार है, उसके दम पे आपको सत्य के लिए आपको गुरु भी मिलेंगे, आपको सत्संग भी मिलेगा, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बूस्टर डोज भी मिलेगा, है ना? तो हर साधक को ये ध्यान रखना है। गलत भी अगर चले गए तो कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं शुरू में गुरु जी को ढूंढने में। राइट। सम ऑफ द गुरुज आर स्टिल इन जेल, सो जिनको मैं फॉलो करने जा रहा था। तो इट हैपेंस, इट्स ओके, बट पॉइंट इज दैट वंस यू आर हैविंग दैट पैशन दैट मेरे को पाना ही है, सत्य को ढूंढना ही है, अपने आप गुरु को ढूंढना है, अपने भगवान तक पहुंचना है, वो तड़प और पुकार आपको सही रास्ता दिखाई। वेरी गुड सर, विजय जी, यस, ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स अमित जी एंड एवरीबॉडी। यस, हेलो। कपिल जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आफ्टर दैट आई विल कम टू सुशील जी। वंदे मातरम। यस। शशि जी, आई मीन ये सत्संग और साधना वाला जो कंपैरिजन वाली बात, जैसे विजय जी ने कहा कि कंपैरिजन ना करें, बट मैं समझता हूँ कि ये वाला सेशन है, ये सत्संग ही है, सत का संग है। और फिर जो इसमें साधना शुरू होती है, जब हम इसको एक बार सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम अंतर मन में अपनी जो उसका विवेचन करते हैं, वी थिंक अबाउट इट, Yes. तो वो साधना है। दैट इज समथिंग व्हेन योर इनर दिस थिंग, यू नो, Absolutely. वाणी में जैसे आता है। और सत्संग भाग्य से ही मिलता है, बिन भागा सत्संग ना मिले, बिन Absolutely. सत्संग मैल ना मरीजे। मतलब दैट इज समथिंग, वो जो गुड और बैड की बात भी हो रही थी ना, कि पाखंड है, ये है, उसमें भी वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है Yes. कि हम उसमें से कौन से पर्ल्स लेके जा रहे हैं। हमारा क्या वो है, देखिए वर्ल्ड में तो यहाँ पे भी हम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो उसमें फेस ऑफ इट तो सारे ही अच्छे होंगे, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा होने में तो वो साधना का रोल आएगा। लेकिन अच्छा दिखने के अंदर वो जो है, वो एक कंपैरेटिव चीज है, वो हमारे को सत्संग से ही मिल पाता है कि यस, कि भाई जो हम कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज अगर ठीक नहीं हो रही है, या मेरे अंदर जो चीज ठीक नहीं है, वो मुझे मिरर ही बता पाता है कि कहाँ मैं ठीक नहीं हूँ। खुद Correct. से नहीं समझ में आएगा, बट Yes. जब ठीक करना है तो मुझे वो साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को साधना पड़ेगा, तो वो साधना पूरी हो पाएगी। Yes. तो वो Perfect. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। Absolutely correct. And it's not in contrary with what is being discussed. It is exactly the same that we have discussed. Wordings can be different, point of view can be different, but then basically we are talking the same thing, है ना? तो Yes, absolutely. साधना जरूरी है सत्संग के सत्संग तक पहुंचने के लिए, और सत्संग के बाद आप जो भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उसको उतारने के लिए अपनी लाइफ में जो भी स्वाध्याय करेंगे वो साधना ही है। तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। सत्संग के लिए साधना जरूरी है, और सत्संग के बाद की साधना आपके स्पिरिचुअल जर्नी को और बूस्टर डोज देती है। इसलिए सत्संग इज ऑलवेज गोइंग अलोंग विद द साधना। वी से experiencing the divinity is by 2 methods, which is sadhana and satsang in combo.
एंड एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी कम्स थ्रू सेवा, क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे वो सेवा भाव से करेंगे। तो इसलिए साधना सत्संग और सेवा में आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी होता है, which is what is exactly the meaning of spirituality, where you experience and express the divinity, right? Very good. Let's acknowledge Kapil ji. Yes, कौन बोलना चाह रहे थे? सुशील जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद? या हाँ। तो क्या आज के अपने डिस्कशन से आपसे जो बातें सुनी, इससे ये समझा जाए कि साधना अकेले कुछ नहीं कर सकते? साधना बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपने कहा साधना से खाली सत्संग तक पहुंचना होगा। तो अगर कोई सत्संग की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, कोई सत्संग सतलोक से जुड़ ही नहीं पा रहा है, अकेला साधना ही कर कुछ कर पाना चाहता है, तो उसका रास्ते वो मतलब रास्ता कहीं नहीं लेके जाएगा उसको। कहीं ना कहीं तो एक हायर पावर पे आप विश्वास रखते हो ना। साधना कर रहे हो तो आप याद किसी की तो भक्ति कर ही रहे हो ना, कि कोई तो इष्ट देव है ना आपका, कोई भी नहीं है। ऐसे साधना कैसी होगी? आप किसकी साधना कर रहे हो, किसके लिए साधना कर रहे हो? एक तो भगवान, एक तो ईश्वर या भगवान होंगे ना जिनको आप मानते हो, वो आपके गुरु हैं फिर, है ना? चाहे वो राम जी हों या भगवान कृष्ण हों या फिर वो जीसस हों या फिर वो प्रोफेट मोहम्मद हो, कोई भी हो, आप किसी को तो अपने से ऊपर मानते हो ना, जिनके लिए आप साधना कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कोई तो भगवान है जिसको याद कर रहे हो, वो आपके गुरु है ना? कोई नहीं है तो आप भगवत गीता को अपना गुरु मान लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपको सत्संग में 25 लोगों को होने ही चाहिए, नहीं, आपके लिए सिर्फ एक गुरु काफी है। एकलव्य के लिए भी एक ही गुरु था। आप अपने गुरु को खुद चूज करेंगे, ये आपकी आपकी कॉलिंग है। आपको कौन से योग मार्ग में जाना है? भक्ति योग में है तो आप किसी इष्ट देव को, उनकी भक्ति करेंगे। राजयोग है तो आप उसको अपनी धारणा ध्यान समाधि से अपने माइंड को कंसेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्ञान योग है तो आपके लिए अष्टावक्र गीता या भगवत गीता वो आपके गुरु है ना? तो कोई ना कोई तो साधना करने के लिए आपके गुरु तो होंगे, अकेले तो साधना नहीं होती, किसी के साथ तो कनेक्ट कर रहे हो ना आप, है कि नहीं? तो वो आपके गुरु है। कुछ नहीं है तो लाइक जैसे बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, सरेंडर टू योर हायर सेल्फ। बुद्धम शरणम गच्छामि, आई सरेंडर टू द अवेकेंड सेल्फ इन मी, दैट्स इट। अपने अवेकेंड सेल्फ के शरण में जाओ। कोई ना कोई तो हायर सेल्फ होगा ही होगा ना जिसको आप गुरु मान रहे हो, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, anybody else who has any confusion on, and let me make it clear, I'm not comparing sadhana and satsang, I'm just telling you the steps. कईयों के लिए साधना पहले होती है, बाद में सत्संग शुरू होता है। कईयों के लिए सत्संग पहले मिल जाता है, साधना बाद में शुरू होती है। So it doesn't matter which one is coming first. Idea is these two in combo will take your spiritual journey forward, because this is the step of experiencing the divinity within you. और अंदर डिविनिटी तब आएगी, अगर अंदर डिविनिटी आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो आपको पहले बाहर ढूंढना पड़ेगा डिविनिटी। इसीलिए लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उनको अंदर अभी ज्योत नहीं जली है, अंदर की ज्योत नहीं जगी है तो वो बाहर दिया जला रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर करिए, तीर्थ स्थान पे जाइए, मंदिर में जाइए, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, रोज मंदिर में जाके दिया जलाइए, वेदर इट इज ट्यूसडे और सैटरडे और व्हाटएवर, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके अंदर वो दिया जलेगा। देन यू विल सीक द डिविनिटी विद इट, तब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। उसके बाद आपकी रियल जर्नी शुरू होगी। और जब तक अंदर दिया नहीं जल रहा है, अंदर भगवान की ज्योत नहीं जली है, तब तक आप बाहर जलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? तो साधना के भी अलग अलग स्तर हैं। आप ये नहीं कह सकते मंदिर जाना बेकार है, नहीं, ना जाने से तो अच्छा मंदिर जाओ, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो दो दिया जलेगा अंदर, दिमाग की बत्ती कभी तो जलेगी। उसके बाद आपको सही सत्संग भी मिलेगा, सही गुरु भी मिलेंगे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी। करेक्ट? तो आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है औरों से, तो कंपेयर नहीं करना। जो आपकी कॉलिंग है उस समय आप उसको पकड़ो। आज की तारीख में आपकी कॉलिंग क्या है, और ये क्लैरिटी सत्संग से मिलती है। कभी कभी क्लियर नहीं होता कि मेरे को कौन सी साधना करनी चाहिए, कर्मयोगी बनूं या कर्मयोग की प्रैक्टिस करूं, या भक्ति योग करूं, या राजयोग करूं, या ज्ञान योग करूं, क्या करूं? तो वो आपको सत्संग में आओगे तो सबके साथ मिलोगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे, वहां पे आपकी बत्ती जलेगी और आप कोई ना कोई मार्ग पकड़ोगे, है ना? तो बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद आप अपनी साधना पे आ जाइए। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे सत्संग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, सत्संग से साधना की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। जब डिविनिटी एक्सपीरियंस हो जाएगी अंदर, तो आपको बाहर भी हर जगह डिविनिटी दिखेगी।
एंड देन इट विल कम इनटू योर कर्म। जब कर्म में आ जाएगा तब आप सेवा भाव में आ जाएंगे, तो फिर आप लोक कल्याण की बात करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करेंगे। दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ मूविंग अहेड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। यस, वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडी हु शेयर्ड। यस, योगेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? या यू रेज्ड योर हैंड, गो अहेड। योगेंद्र यादव जी, हाँ जी। जी जी जी। हाँ, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आपको। नमस्कार। और एक सवाल आ रहा था, पहले तो सोचा पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, कई बार नहीं, सवाल अटपटा हो जाता है। बिल्कुल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काफी समय से मैं इसमें था, तो मुझे लगा आज आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि हर आदमी उसका जवाब दे नहीं सकता। परमात्मा या भगवान जो भी आप कह रहे हैं, है ना, तो ये आदमी की क्रिएशन है या आदमी भगवान की क्रिएशन है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो ज्ञान नहीं है इस चीज का सर। तो सबसे लेकिन पहले मुझे मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी भगवान नाम की कोई चीज है नहीं दुनिया में। तो अभी आप ये आदमी ने क्रिएट किया हुआ है, ओके, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो आप ये देखिए, भगवान को छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान है या नहीं इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, कैन बी ए बिग क्वेश्चन मार्क फॉर सम पीपल, है ना। तो लेट्स नॉट डिबेट इनटू दैट। हम वहां से चलते हैं जहां पे आप 100% श्योर हैं कि ये है। तो आप बताइए, आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? नहीं, हाँ, हम एग्जिस्ट करते हैं सर। 100% ना, पक्का? 100% सर। बिल्कुल सही है। तो आप एग्जिस्ट करते हो। अब आप ढूंढिए मैं कौन हूं। जी। मैं कौन हूं, इसका जवाब देखिए, यहाँ मत मांगिए। आप 100%, जहां पे आप 100% श्योर है वहां से शुरू करिए। भगवान डाउटफुल हैं आपके लिए, छोड़ दीजिए उनको, है ना। भगवान जी को जी इंसान ने बनाया या इंसान ने भगवान को बनाया, भगवान को आपने देखा नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो डाउटफुल है, छोड़ दीजिए। आप 100% हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये पक्का है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ- यहाँ से शुरू जी करिए कि आप हैं कौन। क्या आप ये शरीर हैं? जी। सोचिए, यहाँ शरीर है सब। शरीर ही हैं आप, यानी कि जब आप मर जाएंगे उसके बाद आप नहीं रहेंगे। हाँ, ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा। हाँ, तो अब आप नहीं रहेंगे, है ना। जी। तो जब आप 5 साल के थे आपका एक शरीर था, वो अभी है क्या? वो तो मर गया, हाँ, नहीं, मर नहीं गया वो, बदल जो गया। है ना, मॉडिफाई हो गया। हाँ, तो 5 साल का शरीर तो नहीं है ना अभी। नहीं, वो तो अभी नहीं आप शायद सकते। 40-50 के होंगे, 50-55, कितने के हैं आप सिर्फ अभी? मैं आपकी उम्र 63 का हो गया था। 63। तो 63 ईयर्स में आपकी ये जो शरीर है, ये ऐसे ही रहेगा, परमानेंट रहेगा शरीर, कि ये चेंज होगा? नहीं, शरीर तो अल्टीमेटली खत्म होता ही खत्म, है। है ना। तो आपको इसी तरीके से इंक्वायर करना है। अब सत्य और असत्य क्या है, ये भगवत गीता में भी कहा गया है। हाँ, जी और आप किसी भी उपनिषद में पढ़ेंगे, किसी भी शास्त्रों में पढ़ेंगे, उसमें ये बोला गया है, जो नहीं बदलता है वो सत्य है, जो परमानेंट है, इटर्नल है, अनचेंजिंग है, वो सत्य है, और जो बदल रहा है, टेम्पररी है, वो सत्य नहीं है। क्या जी ये बिलीफ सिस्टम है आपका? जी। क्या ये आपका बिलीफ सिस्टम है या नहीं है? ना, मेरे को तो अब ये जितने भी ग्रंथ है, ये भी किसी इंसानों के लिखे हुए हैं सब। तो ग्रंथ पे भी आपको विश्वास नहीं है ना। ना। तो जी फिर नहीं। क्या दिक्कत क्या है आपको? भगवान नहीं है, कोई नहीं है, आप हैं। आपका शरीर जब तक है आप हैं, एंजॉय करिए जी। लाइफ को। और जब शरीर चला जाएगा आप खत्म, बात खत्म हो गई। 60 हो गया, 40 साल और जीजिए, 100 मारिए, सचिन तेंदुलकर की तरह 100 ईयर्स की सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, उसके बाद मर जाइएगा, आप खत्म कहानी। तब तक एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें क्या कुछ बताना नहीं, मैं चाहेंगे कुछ नहीं साहब? बताना चाह रहा। आपको खुद पता लगाना है आप कौन है। अगर आप बोलते हैं मैं शरीर हूँ, तो आपका एग्जिस्टेंस 100 साल के लिए है बस, मैक्सिमम, मैक्सिमम, है ना। 100 या 120 या जितना भी आप जीना चाहें। नहीं, इसके अलावा भी कुछ और चीज सोच नहीं, बहुत सकता कुछ है है, अगर आप इंसान। बिलीव करना चाहें तो। बिलीव नहीं करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है ना। तो आप सेशन में नहीं, रहिए, बात। जी आप सेशन में रहिए। अगर आपके दिमाग की बत्ती कहीं जलती है तो सोचिए अपने बारे जी में कि मैं अगर शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूँ। जी 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 जी। तो वो सोचिए, फिर धन्यवाद हम सर। बाद में बात करेंगे, राइट। जी 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 ओके, जी लेट्स जी। वेल एक्नॉलेज थैंक योगेंद्र जी, वेरी गुड।
थैंक यू Yes. सर, So थैंक यू। you have to start from where you are. और मैं सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रहा, जो आपके लिए 100% सही है, सत्य है, वहां से शुरू करिए और फिर देखिए मैं हूँ जी कौन। जी 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 सत्य जी। क्या बोला गया है, नहीं अभी मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जो बदल रहा है, जो टेम्पररी है, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, परमानेंट है, हमेशा है। अब मैं 5 साल का था, मेरा शरीर अलग था, लेकिन मैं यही था, मेरे को 100% श्योर हूं मैं। अभी मैं 60 साल का हूं, तो मुझे मालूम है ये शरीर बदल रहा है, बाद में और बूढ़ा हो जाऊंगा और एक बार शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं हमेशा था, हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा, क्योंकि सत्य कभी भी नहीं बदलता है। तो परमात्मा और आत्मा जो है ये सत्य है, और जगत जो है ये असत्य है। यहाँ से सत्य और असत्य की परख होती है, इसी को विवेक कहा गया है। ये सबके लिए, सिर्फ योगेंद्र जी के लिए नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे तो आपको अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है? शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, थॉट्स बदल रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही हैं, इमोशंस बदल रही हैं, तो ये परमानेंट नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। तो ना ये शरीर सत्य है, ना ये इमोशंस सत्य है, यानी कि माइंड भी सत्य नहीं है, लेकिन मैं हूं ये सत्य है। तो मैं हूं कौन? मैं अगर शरीर नहीं हूं, मैं अगर मन नहीं हूं, तो उसको एनर्जी बोला गया है, क्योंकि साइंस में भी बोला गया है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कैन नॉट डाई। भगवद गीता या शास्त्रों में भी यही कहा गया है, आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यानी कि वो है। तो एनर्जी, आत्मा, ये सब परमानेंट है। दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज नॉट ट्रुथ। और जो सत्य है वही मैं हूं। तो भगवान सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और मैं वही हूं। ये स्पिरिचुअलिटी का बेसिक लेवल है ना? ओके, गुड। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? सुशील जैन जी, यस, गैलेक्सी A23, अगर आप, अच्छा जी, यस, ओके, मैं समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया आपको। यस, ग्रेट। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन गो अहेड। I am mute or I am not. No, we are hearing you. We are able to hear you. You can speak. Okay. I want to say कि सत्संग ऐसी चीज है जिसे कबीर ने ठुकरा दिया था कि क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हुए। साध संगत means wherever I'm getting the same thoughts, I'm getting the same impressions. अकेले बैठ के I do my sadhana, it's not possible. But I am in company. उन सबके vibrations, I am getting it. And I'm progressing what my Guru says. When I came to the Guru accepted me, I was blessed. तब मेरा दिया बुझा था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। गुरु ने मेरा बुझा दिया जलाया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होकर मुझे आगे चलना सिखाया। एंड देन गुरु सेज आई एम नॉट विजिबल, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। अवतार आते हैं, ज्ञान जब जाते हैं, अपना ज्ञान अपने साथ लेके जाते हैं। बट यू आर लाइक अ काफ, गेट योर मिल्क, क्या चाहिए तुम्हें ले लो गुरु से, गुरु इज देयर। एंड देन माय गुरु वाज विजिबल and they were propagating, I'm invisible, I'm just Jyoti. Today my Guru is invisible, but I see my Guru मेरे आस पास हो, जो कुछ करते हैं आप, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ गुरु कर रहा है। And I don't blame anybody's wrong, क्योंकि सब उसी के हुक्म से हो रहा है, हुक्म बाहर ना कोई। और गुरु है तो मेरा ज्ञान भी है। एंड आई नो आई एम अ ब्लिसफुल, cheerful, happy, healthy soul. Very good. Because Wonderful. of my Guru Gyan. बहुत बढ़िया. And that is the satsang. Yes. So let's welcome the senior most and the most enthusiastic seeker of our group. Yes. And she's from Bombay and she tries her best to connect with the Wednesday sessions. So thank you for being there. Yes. Let's big acknowledgement for ma'am. Yes. Yes.
Yes, Sanjeev, you are raised your hand. So please go ahead. So I would say that आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। ये ऐसा सत्संग है जो यहाँ पे कोई भी खाली हाथ नहीं बैठा है। जैसा सुशील जी बोल रहे थे, बहुत सारे सत्संग से लोग आते हैं और बिना सुने भी चले जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग आज का हो रहा है कि बिकॉज ये भी एक सत्संग ही है। Yes. और यहाँ पर सिर्फ पूरे डिस्कशन में जो सब अपना अपना इतना प्यारे पॉइंट बोल रहे हैं, उस पॉइंट में मुझे छोटी सी बात याद आ रही है। शशि जी, बहुत पहले आपने एक सेशन भी लिया था, अब वो था 4 पार्ट्स ऑफ योगा। Yes. अब यहाँ पे जितने भी हम लोग सब बात कर रहे हैं, अमित जी ने बोला, कपिल जी ने बोला, आदि जी ने बोला, विजय जी ने बोला, सुशील जी ने बोला, मैम ने बोला, तरुण ने बोला, सबने जो भी बताया, योगेंद्र जी ने बोला, मेरे ख्याल से मुझे इतना प्यारा लग रहा था सबको सुनने में, क्योंकि हर एक कोई अपने योग के पाथ के हिसाब से, किस पाथ पे वो चल रहे हैं, उसके हिसाब से सबने अपने आप को एक्सप्रेस करा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, कि आज के सत्संग में जो मजा आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम सबने एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझा। एंड चाहे वो राजयोग वाला था, चाहे वो भक्ति योग में है, कर्म योग में है, किसी भी योग में है, ये सत्संग एक्चुअली में यही सत्संग है, जहाँ पे सबने अपने मन को बोला, दूसरों को सुना, उसको इवैल्यूएट करा और फिर देखा मेरे को क्या पकड़ना है इसमें से। Yes. जैसे Perfect. शशि आपने बोला है कि इवन ध्यान बुद्ध ने बोला है बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं हुआ, वो उसका लास्ट स्टेटमेंट है संगम शरणम गच्छामि। Yes. Yes. यानी कि बुद्ध के बाद जब आप बुद्ध में जब साधना में बैठते हो, बुद्ध बनते हो, उसके बाद भी उसका संग जो होता है, वहां पे जो और बत्तियां खुलती है, वो सबसे वही सत्संग है। Absolutely. That is it. So I say this is lovely thing. And शशि जी, अगर वो किसी भी तरीके से आप इसको 4 पार्ट से हमारे को और कनेक्ट करोगे ना, बड़ा मजा आएगा इसमें। Okay. Right. So we have some time, so we can discuss that. So primarily जैसे हम बोलते हैं ना, जब भी साधक अपनी साधना पे फोकस करते हैं, तो 4 जो योग के मार्ग हैं, तो सबसे पहला जो होता है, क्योंकि देखिए सब कहते हैं कि मैं कर्म योग करूंगा। कर्म योग क्यों करना है? क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म तो कर रहे हो, लेकिन आप योग में नहीं हो। हाँ, और कर्म की क्वालिटी भी देखिए कैसी होती है, या तो वो तामसिक है या वो राजसिक है, सात्विक तो नहीं है। तो अगर सात्विक कर्म नहीं कर रहे, तो आप कर्म योगी नहीं बने। आप कर्म कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें मतलब कोई डाउट है ही नहीं, हम सब कर्म कर रहे हैं। पर कोई तमस के गुणों से प्रभावित है तो वो तामसिक कर्म कर रहा है, कोई राजसिक गुणों से प्रभावित है तो वो राजसिक कर्म कर रहा है, और कोई सात्विक गुणों में है तो वो सात्विक कर्म कर रहा है। तो कर्म योगी बनने के लिए आपको सही तरीके का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके बाद जो आता है कर्म योगी बनने के लिए, अगर आप देखेंगे ज्ञान है, तो ज्ञान योग से अगर आप अपने सत्य और असत्य को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उस ज्ञान को जब आप कर्म में लाएंगे तो आप कर्मयोगी बनेंगे। या आप अगर भक्ति में हैं, तो अपने इष्ट देव के साथ आप बिल्कुल समर्पण भाव से रहेंगे। तो आप जो भी भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी आप अपना शेड्यूल तरीके से आप जो साधना कर रहे हैं भक्ति योग में, उससे आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने अंदर डिवाइन लव भर रहे हैं, और वो कर्म में ला रहे हैं। तब आप फिर कर्मयोग के माध्यम से चलेंगे। या अगर आप ध्यान योग या राजयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आप उसमें आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। तो आप माइंड को फोकस करके, माइंड को कंसंट्रेट करके साधना से आप अपने समाधि स्टेट में जा रहे हैं, तुरिया स्टेट में जा रहे हैं, है ना? तो वो जब कर्म में आएगा तो फिर आप कर्मयोगी बन जाओगे। तो 4 मार्ग जो बताए गए हैं, वो हर एक की इंडिविजुअल कॉलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो आप राजयोग फॉलो करिए, भक्ति योग करिए, ज्ञान योग करिए, या कर्म योग के लिए कर्म योग के मार्ग पे चलेंगे, तो वो भी 4 मार्ग हैं जो आप आगे चल के आखिर में जाके आप देखेंगे सारे मार्ग एक ही जगह मिल रहे हैं, सब एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठे ही आगे बढ़ रहे हैं। बट एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में सब अलग अलग दिखेंगे। आगे चल के भक्ति में ही ज्ञान है, ज्ञान में ही भक्ति है, और अल्टीमेटली समता में आना है। समता हर एक योग मार्ग में समता बताया गया कि राग रहित, द्वेष रहित आपको समता के साथ रहना है। तो समता आपको ज्ञान योग में भी मिलेगा, भक्ति योग में भी मिलेगा, राजयोग में भी मिलेगा।
और कर्मयोग की भी अगर हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि फल के साथ आसक्त नहीं होना है और कर्तापन के साथ आसक्त नहीं होना है। यानी कि मैं कर रहा हूं, मैंपन, मेरापन, इसमें अटकना नहीं है। और दूसरा, फल की भी लिए भी आपको अटकना नहीं है। तो ये इन शॉर्ट जो 4 योग मार्ग हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप सत्संग में आते हैं या ऐसे ग्रुप में आते हैं, ये भी सत्संग है, बिल्कुल सही कहा संजीव ने, तो यहाँ पे आपको दिमाग की बत्ती जलेगी। अब आप पकड़ सकते हो कि मेरे को अब करना क्या है। मेरे को भगवत गीता पढ़नी है, या मुझे कल से प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, क्या मेरी कॉलिंग है, ये आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो सत्संग का महत्व क्या है? सत्संग के महत्व से आपको पता लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे कैसे और स्पीड पे जा सकती है। तो मेरे को अब साधना कौन सी करनी है, मेरे को कौन से सत्संग में आना है। तो अगर आप कुछ नहीं तो आप यही कमिट कर सकते हैं कि मैं खुद यहाँ पे हर वेडनेसडे को आऊंगा और अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। ये भी बहुत बड़ा एक सेवा है। लोगों को जगाने के लिए अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं उनको, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। स्पिरिचुअल सेवा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, स्पिरिचुअल ज्ञान अगर आप बांट रहे हैं। और पिछले हर वीकेंड के हम हर वीक के हमारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। आप वो रिकॉर्डिंग्स शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। कोई जाग जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इस सोए हुए लोगों को जगाना बहुत बड़ी एक सेवा है। आप भगवान को माने या ना माने, आप लोगों की सेवा तो कर सकते हो ना। और ये भी हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि जीव सेवा को ही शिव सेवा मानी गई है। यानी कि किसी भी जीव की अगर आप सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो। तो विच एवर वे यू वांट टू, सिर्फ आप भगवान को माने या ना माने, आप लोगों की सेवा करिए, जीव की सेवा करिए। जितने भी प्राणी हैं आपके आसपास उनकी सेवा करिए, या उनके बारे में अगर आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, वो भी आपके हिसाब से कर्मयोग आपको देगा। राइट राइट। तो मैंने कोशिश करी है 2-4 मिनट में सब कुछ बताने की। कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड संजीव, आई होप आई हैव डन justice in those 4-5 minutes. Huh? Okay, good. So anything you want to add or anybody else wants to share anything? Amit ji, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, that's fine. Anybody who wants to share? हाँ We still have 5 शशि, minutes. Yes, Adi ji. एक एनालॉजी है जो अभी आप सबको सुन के अभी अचानक एक विचार आया कि साधना और सत्संग एक बीज है। वो अपने आप को पहचान गया साधना से कि मैं हूँ, लेकिन उसको सत्संग चाहिए, उसको पानी चाहिए, भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए, वो सत्संग से मिलेगा। परफेक्ट। खाली बीज अकेला साधना कर सकता है, पड़ा रहेगा, लेकिन अपने पूर्ण स्वरूप को नहीं पा पाएगा। पेड़ नहीं बन पाएगा, जंगल नहीं बन पाएगा। Okay, लेकिन अगर उसको सत्संग मिला, हाँ, तो सत्संग मिला। पानी भी अपने स्वभाव में है, पानी की अपनी साधना है, पत्थर की अपनी साधना है, मिट्टी की अपनी साधना है, हवा की अपनी साधना है, वो सब साधना है, वो सदगए। और यहाँ पे फिर माली चाहिए जो इन सबको सही समय पे जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में देगा, तो वो पेड़ की संभावनाएं जो हैं वो 100% खुल जाएंगी। और तब जाके वो उसकी फ्लावरिंग भी होगी टाइम पे, फल भी लगेंगे और आनंद भी आएगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत मेरी एक बढ़िया। एनालॉजी थी साधना सत्संग। धन्यवाद। Yes. Anything else that you want to add? जी Adi ji? शशि, No, thanks. एक आधा मिनट। एक सेकंड आ रहा हूँ सर। Adi ji, anything else you want to add? No, thanks. Okay, Enough. great, Thank wonderful. you. Let's acknowledge Adi. Yeah. Thank you. Good. हाँ जी योगेश जी, शशि योगेंद्र जी जी बोलिए। शशि जी, एक लाइट बात करना चाह रहा था, मैं सीरियस कर गया शुरू में। सुरेंद्र शर्मा एक कवि है और वो सुनाते रहते हैं कि एक पलड़े में श्री राम हो और दूसरे पलड़े में आप बैठे हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? वो बोलते हैं कि मेरे वाला भारी होगा। आपका भारी कैसे होगा? कहता है एक पलड़े में तो श्री राम अकेले बैठे हैं और मेरे पलड़े में श्री राम मेरे अंदर हैं, तो हम दो हो गए, तो मेरा ही पलड़ा भारी होगा। इतनी अच्छी समझ है आपको, उसके बाद आप जी बोलते हैं भगवान है या नहीं। तो ये किसके लिए पूछ रहे थे आप? नहीं, ये सवाल तो अभी भी है मेरा शशि जी। मैं बहुत तलाशता रहता हूँ और इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ग्रुप में इतने लोगों का समय हम एक साथ नहीं करते। आपसे अलग से करूँगा। हाँ, अलग से बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है ना। जी जी, बट मैंने अपना अपने नंबर आप भी से दिया पहले है। बात करिए, अपने आप से पहले बात करिए, किस किस चीजों का आप 100% श्योर हैं, वहां से शुरू करिए।
जहां डाउट है नहीं, मैं उसको खुद उसको डिबेट मत करिए, जो खुद से तो 100% करते श्योर रहते हो हैं, वहां से आपसे भी शुरू कर करिए, लेंगे। और फिर आप जी मेरे से 1 to 1 कल कर लीजिएगा, कभी भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। जी 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 ऑलराइट, लेट्स प्रणाम। एक्नॉलेज युगेंद्र जी एंड आदि जी। Now ताली we are कैसे reaching the बजाएंगे? schedule time. We are reaching the schedule time. Last and final call for people who haven't shared. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? तरुण जी, anything you want to share? I think most of the people have shared. ए बी कौन थे? नहीं बोले ना, ये ए बी नहीं बोले ना अभी तक। हाँ, ये ए बी नहीं बोले, तो ए बी जी अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। तरुण, you want to share something? Go ahead. What opened up? Hmm. Thank you very much for this wonderful session, and of course ये सत्संग में हर बार आके जो रस मिलता है वो उसका मतलब नजारा ही अलग है, मतलब जिंदगी अलग अमृत की तरह लगता है। और ये लास्ट में जो एनालॉजी दी वो पेड़ में पौधा फल पेड़ कैसे बनेगा और हर एक एलिमेंट का अपनी साधना का जो पावर दिखाया वो दैट इज रियली ब्यूटीफुल। Yes. So I really like entire session. So thank you very much for conducting this so Wonderful. regularly. Thank you. Great. Let's acknowledge Tarun ji. Yes, ABG, if you're ready to share, अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं या आपका वो प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, so you can go ahead. And Adi ji, you can also share since you're coming here for the first time. क्या एक्सपीरियंस था आपका? What are you taking away from the session? It's a wonderful session, and the joy of learning from all angles. So I have learned a lot during the process. एक छोटा सा हिंट यादव जी को दे देता हूँ कि भगवान के संधि विच्छेद कर दीजिए। भगवान 5 तत्व हैं, अब उसको आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए। यादव जी, धन्यवाद। Perfect. Body is made up of, the whole universe is made up of 5 elements, है ना? तो हमारा शरीर भी उन 5 तत्वों से ही बना है, पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना है। और उस 5 तत्वों को भगवान में आप ढूंढ सकते हैं। पहले तो ये होमवर्क करिए, उसके बाद हम कल बात करेंगे। धन्यवाद आपका। राइट, थैंक यू आदि, गुड, वेल डन, वेल सेड। यस अमित जी, लास्ट एंड फाइनल कॉल आपकी तरफ से, समराइजेशन कुछ हो जाए। आई थिंक बीच में ऐसा हो गया था कि हम ऐसा लगा था कि साधना इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, पर ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अपने कंट्रीब्यूशन है, रीजन है। कोई सत्संग से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या कोई साधना से। इन माय केस इट स्टार्टेड विद सत्संग, एंड आई थिंक प्राइमरीली इट स्टार्ट्स विद सत्संग, बिकॉज जब भी हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो एकदम से साधना पे, अगर हम भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखें, एकदम से साधना पे बाद में उतरते, पहले दोस्तों से बातें करते हैं, यार लाइफ में ये परेशानी है। फिर कोई थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंसान होगा तो कहेगा अरे एक्सेप्टेंस को सीख, अनकंडीशनल सीख, फॉरगिवनेस सीख। तो वो धीरे एक तरह से सत्संग का ही फॉर्म है। फिर आपने धीरे धीरे साधना में उतरेगा। तो अल्टीमेटली तीनों का अपना अपना इररिप्लेसेबल महत्व है, कंट्रीब्यूशन है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, वंडरफुल। लेट्स एक्नॉलेज अमित जी एंड यस सुशील जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आज के सेशन के बारे में कहना चाहूंगा। हमेशा इस तरह की क्लास से कई बार थोड़ी प्रैक्टिकल लगती है, आज आपने पूरी प्रैक्टिकल कर दी। तो योगेंद्र जी, आपसे माफी मांगते हुए, आज के सत्संग का रिजल्ट आपके पहले सवाल और अंतिम वक्तव्य से पता चल जाता है कि सत्संग का असर होता है। आपने शुरुआत की थी कि ईश्वर है या नहीं है, कैसे मानो, और लास्ट में आपने कहा तराजू के अंदर मैं बैठा हूँ, इस्लाम भी मेरे भीतर बैठा है। तो ये सत्संग से ही आपकी यात्रा हुई है। मैं आपकी तरफ से बोल गया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आज करा। Yes, great. Let's acknowledge everybody. धन्यवाद सुरेश जी। Yes अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Go ahead. हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम सभी लोगों से, स्पेशली जो बहुत टाइम से आ रहे हैं इस सेशन में, इस सत्संग को या किसी भी सत्संग को बढ़ावा देना उच्च कोटि का काम है ही। अभी हमने डिस्कस किया था, गीता में भी लिखा है ज्ञान दान इज द हाईएस्ट ज्ञान दैट वी कैन हैव, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट दिस ह्यूमन मशीन। तो आप सभी लोगों से विनती है, ये सेशन या कोई और भी सेशन, बट मैं तो पर्सनली बोलूंगा इस सेशन में लोगों को और बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह का लाइट पहुंचे, हम सबके लिए फायदा है। तो सत्संग में और अट्रैक्ट करें लोगों को। कपिल भाई बहुत कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच कपिल भाई, कीप डूइंग दैट, एंड एवरीबॉडी एल्स एज वेल। Yes, wonderful. Let's acknowledge everybody who shared and everybody who is committed to attend the sessions again and bring more people into the satsang. Yeah, क्योंकि देखिए लोग सो रहे हैं, उनको जगाना जरूरी है।
हम अपने लाइट, जो हमारे अंदर जो लाइट है, उसी को हम स्प्रेड कर सकते हैं. Once we spread the light, people will wake up. People will become awake. People will wake up. Only thing is we have to keep putting the efforts. मैं 5 साल से हर वेडनेसडे को हम ये सेशन करते हैं इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई तो कभी ना कभी जागेगा. हाँ, तो मैं तो अक्सर बोलता रहता हूँ संजीव से भी और अमित जी से भी, मेरा काम है शंख बजाना. मैं तो लोगों को जगाऊंगा. कौन सोता रहना चाहता है वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं तो जगाऊंगा. तो मैं हर वेडनेसडे को ये शंख बजाता हूँ. जिनको जागना है जाग जाओ, जिनको आना है आ जाओ. पर फिर भी अगर कोई सो रहा है, दैट्स फाइन. वो अब आज नहीं जागेंगे, बाद में जागेंगे, इतना ही. नहीं तो जो शशि लोग जी, जाग गए हैं, हाँ जी, हाँ जी कपिल जी. शशि जी, आज एफर्ट किया था, लास्ट मिनट पे ही एफर्ट किया था, थोड़ा ही एफर्ट किया था. तो मैं अमित जी को ये कहना चाहूंगा कि ये मुझे जो समझ में आया कि वो जैसे मैंने जो अभी लाइन बोली थी ना, बिन भागा सत्संग ना लभे, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं. तो ये अभी ये ना, अभी मान लीजिए अभी हम 400-500 लोग होते, वो बड़ी बात नहीं है 400-500 का वो करना. लेकिन जो अभी ये जिस क्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं ना, एंड देन ब्रदर ने बिल्कुल अभी संजीव भाई ने अभी जो बोला कि ना सब अपने अपना जो अपनी जर्नी है, अपने एक्सपीरियंस को बात कर रहे हैं. और जितना जैसे यादव जी ने बात शुरू की थी कि ईश्वर है या नहीं है, उसमें उनको कंफ्यूजन थी और उन्होंने ही खुद वो उत्तर दिया. और उसको जैन साहब ने जिस तरह से समरी किया कि ये इसी सत्संग के अंदर ही कई चीजें मक्खन की तरह निकल के आ रही हैं. तो मैं अभी अमित की बात सुनते सुनते मेरे को लगा कि ये भी ईश्वर ही इच्छा है, ईश्वर कृपा ही है कि हम ये लिमिटेड हैं. अगर ये 500-600 की गैदरिंग होती तो मैं सारे ही अपने दोस्तों को नमस्ते, राम 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 राम, ये वो सारे लोग अपना चैट में मैं वंदे मातरम डालता हूँ, वो सब अपनी अपनी अटेंडेंस डाल रहे होते. तो शायद ये भी हमारे लिए ठीक है, कर्म जरूरी है. आप शंख बजा रहे हैं हर वीक और हम भी हर वीक अपना मेहनत करेंगे. लेकिन सब लीव इट टू प्रभु इच्छा कि अगर वो इस तरह की वीआईपी सेटिंग चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रसाद है. और यहाँ लाखों लोग आ जाएं इकट्ठे, वो भी प्रसाद है. तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सम अप कि हमें तो रब दी रजा में राजी हैं जी. बिल्कुल बिल्कुल. I am absolutely blissful in any state of being. Just to add on one more thing, मैडम ने जैसे कहा था हुकुम के अंदर सब है, बिल्कुल आई एग्री विद हर. एंड ये रब दी रजा और हुकुम एक ही बात है कि जो हुकुम के अंदर ही हम सब कुछ हैं, हम ही सब हुकुम में है, हुकुम के बाहर कोई भी नहीं है. तो हमारा कर्म हमारे सामने होना चाहिए कि क्या मैंने एफर्ट किया था. यस, कि भाई वो है. और बीइंग अ लॉयर ये कह सकता हूँ ना कि उसका क्या कोई प्रूफ है. हाँ जी प्रूफ भी है, ग्रुप्स में डाला. यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई आ जाओ, अटेंडेंस डाल के अपना जिस टाइम मर्जी एग्जिट ले लेना. एक उनको टेस्ट मिल जाए, एक हो जाए तो आदत तो अपने आप बन ही जाएगी. तो वो प्रयास जारी है. एंड जब वो हरी इच्छा होगी तो वो कार्यान्वित भी हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. Let's acknowledge everybody who came here, took the valuable time to come here. So thank you very much for your participation, and special acknowledgement for Kapil ji and Amit ji who have always been inviting people to this session. Right. So thank you very much. We meet again next week with wonderful topics again. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Divine blessings. Aham Brahmasmi. Bye bye. थैंक यू. सभी को आत्मीय नमन.